Hello everyone, we are now going to talk about an important name in the history of management. The name does not need any introduction. His name is Henry Fayol, who is also popularly known as father of modern management theory. Henry Fayol was born on 29th of July 1841 and he passed away on 19th of November 1925. Today we are talking about him in this video because he has given 14 important principles of management. 14 अलग-अलग प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए. And that's why he is very important figure and we are talking about him right now. So what are these 14 different principles? The entire video is all about that. And where did these principles come? For the first time, it came in the book Industrial and General Administration, which was available originally in French language, and later on, it was translated into English language in the year 1929. So after his death, 5 years after his death, the book was published and translated into English language. This itself is an indication that it was one of the most popular and famous books available in the early 20th century in the field of management. So let's talk about what are these different 14 principles actually. The first principle that he gave was that division of work. हेनरी फ्योल जी का मानना था कि काम को डिवाइड कीजिए अलग अलग सेक्शन में, जो जिस लायक है वैसा काम दीजिए उसको. Work should be divided into different segments. Just like at home, whenever we have a party, somebody is responsible for, welcoming the guests. Somebody is responsible for taking care of water and looking at the logistics if things are being done. सब ठीक ठाक बढ़िया से खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. So division of work, काम सबका अलग अलग किया जाता है. सबको कह रहा है कि in order to get better output from management, it's better to divide the work. वर्क का डिवीजन होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. नंबर 2 इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू मस्ट डेलीकेट सम अथॉरिटी. यू मस्ट डेडिकेट, गिव अलॉट सम ड्यूटीज, गिव सम अथॉरिटी, गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दीजिए. अथॉरिटी भी दीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए. उनके ऊपर भार भी दीजिए कि ठीक है आप ये काम कीजिए. But please remember, there is a difference between responsibility and accountability. Responsibility मतलब होती है, responsibility उसे कहते हैं जो आपके ऊपर रिस्पॉन्स दिया गया काम करने के लिए, आप वो काम पूरा कीजिए या करवाइए किसी भी तरह से, या तो आप कीजिए या किसी दूसरे से करवाइए. तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आंसरेबिलिटी है. आंसरेबिलिटी मीन्स यू हैव डन दिस. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जवाब आपको देना होगा. सो अकाउंटेबिलिटी शब्द का मतलब है आंसरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दायित्व. ये दायित्व आपको मिला है, या तो आप खुद निर्वाह करें इसका या किसी व्यक्ति की मदद से कंप्लीट करें. लेकिन अथॉरिटी शब्द का मतलब है पावर. Giving you authority means making you a manager, making you an MD, making you somebody who is very important. So that's the meaning here. Authority and responsibility. पहले authority दीजिए, उसके बाद उसे responsibility दीजिए कुछ काम करने के लिए. Then the person would grow. Then the person would work. Then the person's best performance would come in the organization for the betterment of the company. And the third one is discipline. शिष्टता बहुत जरूरी है. Right? There is a very thin line, right, between discipline and indiscipline. शिष्टता और उदंडता के बीच में बहुत पतली लकीर है जिसे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं. Henry Fayol identified this importance, saying that discipline has to be there. शिष्टता होनी चाहिए, because without discipline, a senior cannot, monitor or train a junior appropriately or a subordinate appropriately. Therefore, there has to be discipline. The fourth one is unity of command. Unity of command का मतलब है आपको आदेश जो मिल रहे हैं काम करने के लिए, वो 50 आदमी आपको आदेश नहीं दे सकता है.
कोई एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली आपको, अभी, कुछ दिन पहले, कुछ दिनों के बाद, एक ही व्यक्ति आपको आदेश दे कि आप इस काम को कीजिए, इस काम को ऐसे कीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कमांड जो देगा, जो ऑर्डर देगा, वो एक व्यक्ति होना चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि किस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव शैल हैव वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड एंड वन प्लान, तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैं जरा इधर आ जाता हूं, आप लोगों को वीडियो देखने में सुविधा होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि किसी भी तरह से ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जितने भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होंगे, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव शैल हैव वन हेड एंड वन प्लान। उसका एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगा, ना दूसरा हेड होगा ना कोई दूसरा प्लान होगा। तो वही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब निर्देश का एक प्रॉपर यूनिटी होना चाहिए, प्रॉपर निर्देशित होना चाहिए। नंबर 6 इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, शब्द को पढ़ने से ही मीनिंग पता चल रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जिसमें हम रुचि रखते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको जनरल इंटरेस्ट बनाना है। उसको वही काम करना है जो सबके लिए फायदेमंद हो, जो सबका हितकारी हो, वही काम करना है। अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है अपना फायदा करना, तो उसी सोच को, उसी विचार को सबके फायदे के लिए परिवर्तित करना है। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत रुचि को आप सामूहिक रुचि में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पैसा जो मिलता है, दरमाहा, money that we get at the end of the month. So, right, the amount that we draw. Remuneration of personnel, जो व्यक्ति अपने यहाँ काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए। They should be able to earn well. That's important. It should be fair and must afford maximum satisfaction to the firm and employees as well. रिम्यूनरेशन का मतलब है कि ये जो सिस्टम है, पैसा मिलने का जो सिस्टम है, वो फेयर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मस्ट, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले हैं, वो निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से संतुष्ट होने चाहिए अपने काम से। तो ये हुआ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। 8वां है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों जो वर्ड है, दोनों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी व्यूड एज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन। जरूरी है या नहीं है, लेकिन हेनरी फ्योल जी का मानना है कि सेंट्रलाइजेशन की ही जरूरत है, बिना इसके काम नहीं हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन जरूरत है। केंद्रीकरण मतलब एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता हो तो वो ठीक से आगे मैनेज कर सकता है, बात को बढ़ा सकता है, काम को आगे कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है जानना कि सेंट्रलाइजेशन मतलब हुआ कि अथॉरिटी इज टू बी डिस्पर्स्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिटेन्ड एट हायर लेवल। अथॉरिटी जो पावरफुल लोग हैं वो सब हायर लेवल पर ही होने चाहिए, जितना पावर है वो सब हायर लेवल पर रहे, वही है। केंद्रीकरण बताए थे। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन में पावर कम्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यूअर पीपल, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर इज डिस्पर्स्ड among the hands of several people at other level, lower level, subordinate level. इसमें क्या है? It disperses only at the higher level. एकदम ऊपर वाले लेवल पर ही ये पावर रहता है. So that is called centralization. Number 9 is scalar chain. Scalar chain का मतलब है it refers to superior subordinate relations. दोनों जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा. स्केलर मतलब हुआ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए तब जाके होगा.
फिर है एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ORDER। ऑर्डर मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। 11th का है इक्विटी। इक्विटी शब्द का मतलब आप जानते ही होंगे। इक्विटी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट while dealing with people. Equity is the combination of kindness and justice. दोनों, दया भी होनी चाहिए और न्याय भी होनी चाहिए। दोनों चीज, दया और न्याय, काइंडनेस एंड जस्टिस, अगर ये दोनों पॉइंट है किसी मैनेजर में तो वो इक्विटी कहलाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब जो आपके यहाँ काम करने आया है उसको काम करने दीजिए, उसको तुरंत यहां से हटा के फिर दूसरे डिपार्टमेंट, फिर दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट, ऐसे मत कीजिए। स्टेबिलिटी मतलब थोड़ी सी अस्थायित्व उनको दीजिए, थोड़ी सी फीलिंग होनी चाहिए उनकी, बिलोंगिंगनेस, कि मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक से काम कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कार्यावधि, स्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थायित्व। सो कार्यावधि को कुछ हद तक अस्थायित्व कीजिए। हाँ, कोई इस पोस्ट पर आया तो कम से कम वो 3 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीना काम किया फिर उसको बदल दीजिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, किसी जॉब का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी स्पेसिफिक टास्क का इनिशिएटिव करना। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो काम हो रहा है, जिस परेशानी से हम झेल रहे हैं, उस परेशानी को डील करने के लिए नए ढंग से उसको कैसे सोच सकते हैं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के हिसाब से है। इनिशिएटिव अगर जब लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हम समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो समस्या नहीं रहेगा, वो आसान हो जाएगा। हेनरी फ्योल का मानना है मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत में एक प्रमुख यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। आइस ब्रेकर होने चाहिए, आप बात की शुरुआत करें, समस्या को समाप्त करें। और लास्ट जो है ये फ्रेंच टर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1929, originally written much before that, but it was published in 1929. The English version published in 1929, but the French version was available in 1916. 1916 में ही फ्रेंच वर्जन उपलब्ध है। उसमें ये टर्म था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया गया, सेम वैसा ही रखा है। स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स, इस टर्म को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स द प्रिंसिपल एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द नीड फॉर टीम वर्क एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑब्टेनिंग इट। मतलब कहीं भी टीम वर्क है, अगर टीम वर्क हो रहा है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोचें, मैं कुछ और सोचा। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में, अपने हिसाब से काम कर रहा हूं किसी तीसरे डायरेक्शन में, तब जाके मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कंपनी की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। कंपनी तभी बढ़ेगी जब स्पिरिट डी क्रॉप्स है, एक दूसरे को समझना, स्मूथ कम्युनिकेशन, हेल्पिंग ईच अदर, वर्किंग टुगेदर, ये है 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। यहां पर आज की वीडियो में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो आपको आंसर मिल गया, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1841 एंड पास्ड अवे इन 1925। The original book Industriale Le Generale published in 1916, वो फ्रेंच बुक है, लेकिन उसका जब ट्रांसलेशन हुआ, जब इंग्लिश वर्जन आया तो उसका टाइटल हो गया इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिश हुआ 1929 में। 1929 में ये पब्लिश हुआ, जिसमें ये 14 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए थे। ये क्या है डिफरेंट पॉइंट्स? ये पॉइंट्स हैं, सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, जिसमें कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, काम को अलग अलग बांटिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, जो काम कर रहे हैं उनको पैसा वैसा ठीक से मिलना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, पावर शुड बी देयर इन फ्यूअर हैंड्स, स्केलर चेन इंडस्ट्री, स्केलर चेन होना चाहिए, एकदम प्रॉपर एक 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों को, कहीं पर किसी को किसी भी तरह की
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम लोग ध्यानपूर्वक इसको ठीक से काम करेंगे। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप अगर ठीक से मेंटेन करेंगे तभी जाके स्केलर चेन सक्सेसफुल होगा। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, सब चीज में एक ऑर्डर होना चाहिए। इक्विटी इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्विटी और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इक्विटी का मतलब क्या है? हमने देखा है कि मैनेजमेंट मस्ट हैव द डिजायर फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड डीलिंग विथ पीपल। कैसे, किस तरह से लोगों को कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करना है। मैनेजर को चाहिए कि किसी की समस्या तो उसको ठीक ढंग से सुने और उसको ठीक से डील करे। इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, थोड़ी सी स्थायित्व होनी चाहिए। इनिशिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। स्पिरिट डी क्रॉप्स, आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।